with the blessings of Lord Dhanvantari, today we shall start the Virechana topic. शायद वमना आप already पढ़ चुके हैं. It will be more easier if वमना is done. उसमें काफी चीजें similarities है लेके पूर्व कर्मा and all. So I don't know whether it is done or not. So Virechana, which is second karma in the Panchakarma, जो पंचकर्मा बताया है. Can someone quickly say which is the 5 karmas, panchakarmas listed in Ayurveda? Chalo. Okay, it will take more time also. Let me just, Vamana, Dr. Richa is saying, Vamana, Virechana, Basti. Yeah, 2 types of Basti. Anuvasana and Kashaya Basti and Nasya. Yes, wonderful. So now, yeah, Rakta Mokshana. Yes, this is according to Acharya Sushruta. Yes, fine, wonderful, Dr. Richa. So I will be taking the second karma, that is Virechana karma. So this is what you can say, Virechana is a therapeutic purgation or a medicated purgation, wherein what happens, the medicines are administered through oral administrations, that is through the mouth. So medications will be given. After intake of the medications, the doshas or the toxins, it will be expelled through the anal canal, that is called as Gudamarga in Ayurveda. So through the anal canal, the doshas will be expelled or removed out of the body. So this is mainly, Virechana is actually indicated majorly in Pitta related conditions or Pitta vitiation or Pitta dosha derangement. Though it is mainly for Pitta and as well as Rakta, because Rakta has a very close relation to Pitta. So Pitta and Rakta issues, Rakta conditions will be resolved with Virechana. Even the Vata and Kapha dosha conditions, no, wherever there is a Vata imbalance or Kapha dosha imbalances, this is equally beneficial with Virechana karma. So that's why this is more accepted Panchakarma or cleansing process than Vamana karma. And also one more major benefit from Virechana is it is more beneficial for even Swasthya Rakshana, that is general wellness also, for general detoxification also. That's why it is highly accepted or one of the wonderful Panchakarma. I personally like this therapy a lot. So next slide, please. So before understanding the Virechana karma, वो कैसे करते हैं, उसका preparation कैसा है, वो पूरा प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर क्या है, उसके बाद पश्चात कर्मा, पोस्ट प्रोसीजर क्या क्या करना है, वो सब जानने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंडीशन व्हाई वी आर डूइंग विरेचना. सो इट इज यूजुअली मेनली इंडिकेटेड इन पित्ता imbalance और पित्ता derangement conditions. सो पित्ता क्यों विशेषण होता है, उसका क्या क्या वजह हो सकता है. मेनली पित्त प्रकोप आहारा, दैट इज वेरी स्पाइसी फूड, वेरी सॉल्टी, वेरी सॉर, ये तीनों अगर बहुत सारे क्षार अम्ल लवण हम बोलते हैं, या कटु अम्ल लवण रस जिसमें बहुत ज्यादा हम खाते हैं, बहुत तीखा, रोज बहुत तीखा खाना, बाहर का खाना बहुत खाना, देन पैक्ड फूड्स, देन सॉसेस, बहुत कट्टा वाला भी, कर्ड्स, फिशेस, जो मतलब बहुत बॉडी में गर्मी भी बढ़ाता है ना, जो उष्ण कारक है, जो पित्त कारक है. देन वेरी ग्रीन चिलीज, ऐसे बहुत सारे मसाला वाला आहार हम लेते हैं, तो उसके वजह से पित्त विजिएशन. एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ऐसे नहीं कि 1-2 दिन खा लिया आपने वो हो रहा है. फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इफ यू आर कीप ऑन टेकिंग सच फूड, देन पित्त विल गेट विसिएटेड. एंड ऑल्सो सन एक्सपोजर, काफी आतप सेवना, मतलब बहुत बार धूप में रहना, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको बहुत जल्दी अफेक्ट होता है पित्त के रिलेटेड. Okay, then prolonged fasting because Agni will get impaired. Then late night work, again काफी आजकल तो IT sector, you know, MNCs and all, people work in the night shifts and all. So even then throughout the night, because the biological clock gets disturbed, the Agni gets disturbed, so overnight work करने वाले, then and आजकल काम भी छोड़िए, you know, people have become addicted to this Netflix, Amazon Prime Video मूवीज और शोज. सो उसकी वजह से क्या होता है, दिन भर वो काम करते हैं, शाम को ही ज्यादा उनको, इवनिंग, लेट इवनिंग दे गेट टाइम, सो दे वॉच
whole night the mobile pakad ke, they watch the movies and all. Even this is very harmful. Then chemical exposure also. Then and one more very important thing is mental emotions also. Even they trigger our doshas. They cause the imbalance in our physical doshas. Okay, so mental emotions, especially like anger, grief, fear, ये हमारा देह में पित्त को बढ़ाता है काफी. जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, हमेशा गुस्से में रहता है, दिन या दुख में रहता है, या बहुत डरा हुआ एंजियस भी रहता है. सो ये सब पित्ता imbalance, because of agni will get deranged, then indirectly it will cause problem to the pitta. So hope I'm clear till now. Okay, so going to the next slide. Yeah, like initially मैंने बता दिया कि विरेचना is very very good for pitta and rakta, because rakta is very closely related to pitta. Because see, the दोनों का quality same है, उष्णा है, वो बहुत सारा गुणा है. The similarities are very very much. There are many similarities. Then one more reason is the vitiated pitta. नो, जब भी पित्ता विशेषण होता है, काफी चांसेस है वो ब्लड को इम्प्योर करे, ब्लड का इम्बैलेंस करे, ब्लड का न्यूट्रिशनल वैल्यू डिरेंज करे. सो whenever there is pitta imbalance in the body, that will affect the rakta also. So that's why both are related, and anything gets deranged, the other one will have the effect. Then impure blood. So जो रक्त, दूषित रक्त बोलते हैं हम आयुर्वेदा में, वही वजह है काफी सारे स्किन डिसीजेस के लिए. Not just only the skin diseases, even the acne होगा या hair fall होगा, even many hair problems also, this pitta and rakta play a very major role. Okay, so virechana is highly recommended in most of the skin diseases. So even when you want to cleanse the rakta, virechana is a wonderful treatment. So next slide please. So विरेचना का पहला इंडिकेशंस, मतलब कहाँ कहाँ हम विरेचना को थेरेपी को यूज कर सकते हैं, where to which patients we should give. That is, selection criteria is very very important. जो भी पेशेंट आ जाए तुरंत विरेचना ऐसे नहीं है. हाँ, वैसे तो ये क्लेंज ही करता है, any dosha it is indicated, let me just give virechana. It is not like that. See, mainly prakriti को analysis करना पड़ेगा. You have to analyze the prakriti. Then especially pitta prakriti and pitta prakopa and rakta dushti, these three are the major indication. Along with that, our classical references में आप चाहे तो ये थोड़ा लिख भी सकते हैं, जिन जिनको हो सकता है. मैं additional points जो PPT में नहीं है मैं बता रही हूँ. I am telling the extra points also. You can write it down. I'll go little slow. So classically they have told jwara also. But always remember, it is not acute fever or not amavasta or navajwara. It is purana jwara, jeerna jwara. Okay. Then anemia. Then digestive tract problems like nausea, hyperacidity, fatty liver. See, all these are all metabolic disorders only. Either the agni is impaired, agni is manda, or it is not digesting the food properly. Even it is normal, the pachana avastha is not happening in the body properly. So what happens? There will be nausea or काफी लोग बोलते हैं ना, आजकल तो acidity तो very common है सबके घर में. टाइम पे नहीं खाते हैं, वो अग्नि को डिस्टर्ब कर ही देता है. तो this is very helpful in that. Chronic hyperacidity, then fatty liver, ascites, jaundice, worm infestations. See, it is cleansing your gut, digestive tract. जो भी worm infestation है, that will also get eliminated from the body. Then respiratory illness, like respiratory conditions like bronchial asthma, cough, and nasal discharge. In the context of tamaka shwasa, our text say that tamaketu virechanam. So the line of treatment for tamaka shwasa you can consider as bronchial asthma. For a reference, you can consider that one. So उसके लिए विरेचना ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि सी ये कॉफ, आप लोग सोचते होंगे रेस्पिरेटरी इलनेस तो
इधर हेड एंड नेक में रहेगा एंड चेस्ट पार्ट में रहेगा, ये तो क्लेंस कर रहा है एनल रूट में, ये कैसे हेल्पफुल होगा? सी वाता क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी कंडीशंस में वाता विल बी इन प्रतिलोम गति, उल्टा हो जाता है, इसके वजह से ये श्वास का और कासा का सिम्टम्स आते रहते हैं। सो वाता को यू हैव टू पुश इट बैक टू अनुलोम गति, क्योंकि अपान वायु का मेन है वो अनुलोम गति में ही वो इट विल बी गोइंग, इट विल बी पासिंग थ्रू अपान द डायरेक्शन ऑफ अपान वायु इज अनुलोम गति। सो इन कंडीशंस में क्या हो जाता है, श्वास और कासा में इट विल बी ऊर्ध्वग और प्रतिलोम गति ऑफ वाता। So with the help of Virechana, what happens that apana vayu ka gati will be restored. So then it trust me, it works wonderful in chronic rhinitis, allergic rhinitis, chronic rhinitis, long standing cough, बहुत सालों से बोलते रहते हैं, साल भर cough रहता है, except for summer I cough throughout the year, then bronchial asthma. So in these cases Virechana is wonderful therapy. Okay, then joint disorders, Amavata and gouty arthritis. Yes, because again, it is wonderful. These are all like autoimmune disease or metabolic disorders. Pitta will be taken out and the metabolism will be restored. Okay, then other than this, skin diseases also. Many skin diseases, like already told, because of Pitta and Rakta involvement, हाइपरपिगमेंटेशन आजकल ये आ जाते हैं, क्या एक्ने ब्रेकआउट्स आ जाते हैं या पिंपल के मार्क्स रह जाते हैं, ये तो मेलस्मा आप क्या बोलते हैं, ये व्यंग पीड़क का सभी कंडीशंस जो स्किन के बताया है वो रिलेटेड टू पित्ता है। सो डेफिनेटली विरेचना विल बी हेल्पफुल। आई हैव पर्सनली सीन ये व्यंग पीड़क का वगैरह में इट हैज ब्रॉट वंडरफुल रिजल्ट्स, विरेचना कर्मा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, लाइक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्रीवियसली बता दिया है, स्किन के एक्ने में, एक्जिमा में, सी एलर्जिक डर्मेटाइटिस अर्टिकेरिया में जो एलर्जी है, जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉनिक अर्टिकेरिया केसेस में, एलर्जिक डर्मेटाइटिस में पित्ता इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है स्किन डिसीजेस में। एंड एलर्जिक टॉक्सिन्स जो हम मॉडर्न वे से भी देखेंगे ना, सेलुलर लेवल में, सी विरेचना इज नॉट जस्ट ओनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लेंस करता है, ऐसे नहीं है, इट रीचेस टू एवरी सेल इन योर बॉडी। हर एक सेल में वो मेडिकेशन जाके वहां से द टॉक्सिन्स विल बी टेकन इनटू द स्टमक, कोष्ठा में, शाखा एंड कोष्ठा बोलते हैं जो रेफरेंसेस हमें मिलता है, इट इज शाखा मतलब सिर्फ एक्सट्रीमिटीज नहीं है, यू कैन कंसिडर टू एक्सट्रीम लेवल, लाइक डीपली वो हर एक सेल में इट विल टारगेट हर एक सेल। एंड बिकॉज अर्टिकेरिया इज जनरलाइज्ड, ओके, डर्मेटाइटिस हो या कुछ भी, काफी सारे एलर्जिक कंडीशंस, इट विल बी इन डीपली रूटेड इन द सेल्स। सो ये सब टॉक्सिन्स वहां से ही निकल के आता है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी बेनिफिशियल। देन अनीमिया, डेफिनेटली रसधातु क्षय हुआ है, मतलब अग्नि मंद हुआ है कहीं पे, वो अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली, आप चाहे जितना भी अच्छा हेल्दी फूड ले लो फिर भी आपका अनीमिया ठीक नहीं हो रहा है, देन बिकॉज द अग्नि इज इम्पेयर्ड देयर। सो अग्नि को बराबर करने के लिए यू हैव टू पित्त को बराबर करना ही पड़ता है। देन वंस द विरेचना इज डन, ग्रेजुअली द पेशेंट विल हैव अ वेरी गुड अग्नि, मतलब उसके बाद भी काफी सारी चीजें हैं, जो भी डिसीजेस ये इन्होंने बताया है, स्किन डिसीज हो, अस्थमा हो, आमावाता हो, विरेचना इज अ प्रिलिमिनरी थिंग, शोधन करके उसके बाद आप शमन औषधि देंगे तो देन द रिजल्ट्स विल बी वंडरफुल। विरेचना अलोन विल नॉट ट्रीट ऑल द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस यस, विरेचना करते ही आपको तुरंत वो पेशेंट बोलेगा मुझे तुरंत ये सॉल्व हो गया, ये आई एम फीलिंग बेटर विद दीज थिंग्स एंड ऑल, बट काफी डिसीजेस में इट इज ऑल्सो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे ट्रीटमेंट को शेड्यूल करना है, विरेचना के बाद क्या क्या मेडिसिन देना है, आगे क्या क्या और ट्रीटमेंट देना है, वो आपकी युक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। सो यू कैन डू सो मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके आप कर सकते हैं, बट वेरी बेसिक इन ऑल दीज कंडीशंस विल बी विरेचना।
So एक बार आपने शोधन कर दिया है, the body will be fresh, all the cells will be toxin free. So it is not only gut will be cleansed, it is cells will be cleansed. So whatever आप बाद में आप कुछ भी देंगे ना दवाइयाँ, वो बहुत अच्छे से absorb होके और भी better results मिलेंगे. So headache भी recurrent headache भी वाता प्रतिलोमा गति रहता है. विरेचना will get back the वाता गति to अनुलोमाना गति. So that will be pacified. So usually आजकल headache जो headache रहता है वो combination headache ही है. सिर्फ sinusitis नहीं रहता, सिर्फ migraine नहीं रहता, सिर्फ tension headache नहीं रहता, जहां तक मैंने अपने practice में देखा है. So it will be combination headache only, and काफी लोग हेडेक में वॉमिटिंग नोसिया तो बताते हैं, मतलब सो सब प्रतिलोमा गति ऑफ वाता ओनली एंड पित्ता आल्सो, एक्सेसिव पित्ता, एसिडिटी में भी हेडेक इज वन ऑफ द सिम्टम. सो दैट वे विरेचना विल हेल्प. ओके, होप आई एम सबको समझ में आ रहा है. am I going too fast? Because see, this is my first session with you all, first interaction with you all. If I am going, I'm rushing, or you are not understanding, you can, yeah. Thank you so much, Dr. Alok and Dr. Sonia. Okay, next slide, please. Dr. Poonamji, thank you. See, Ayurveda says again, individually जब disease में हम references देखते हैं, तब पक्षाघाते विरेचनम बोला है, and udara and ascites patient में नित्यम एनम विरेचनम, because of the fluid accumulation, वो निकालना है बाहर से जो abnormal accumulation है, तो नित्य विरेचना बोला है उसमें. Then even surgical conditions like fistula in ano, hemorrhoids, even hernia, ये सब चीजों में वो हर डिफरेंट लेवल पे वो बहुत हेल्पफुल है. आजकल तो फीमेल इनफर्टिलिटी हो या पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, देन मेल इनफर्टिलिटी हो, चाहे स्पर्म काउंट कम है, एंड मेनोरेजिया, पीरियड्स बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, मतलब सारे पीरियड्स के प्रॉब्लम में यू कैन कंसिडर दिस एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट. ओके, प्रिलिमिनरी एक बार शोधन करके आप बाद में वो इनफर्टिलिटी का आप टैकल करेंगे. कुछ भी हार्मोनल लेवल, टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम हो, प्रोजेस्टेरोन का प्रॉब्लम हो, ट्रस्ट मी, विरेचना करके आप बाद में जो अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप inculcate करेंगे, that will give you wonderful results. So PCOD का तो कॉमन आपके ओपीडी में मिलते हैं पेशेंट्स. कोल्ड कॉफ के मिलते नहीं है तो चलेगा, लेकिन पीसीओडी का तो यू विल कंपल्सरीली गेट. इट इज वेरी कॉमन. इवन हाइपोथायराइडिज्म का केसेस काफी, especially in hypothyroidism, no, Vamana followed by Virechana, if you do, that will give wonderful results. So combination therapy you can do. In PCOD, you can do combination of Virechana and this one, what, Basti and Nasya. These three combination, it will give wonderful results. Then in obesity and diabetes, तो आजकल बहुत वो भी हर एक घर में एक ना एक तो डायबिटिक पेशेंट रहता है. And obesity, yes, because of the lifestyle, we have we are harming our bodies, ourselves only. It is not that कोई कुछ viral infection हो रहा है, कुछ bacterial infection हो रहा है. Obesity is one such thing, is हम खुद अपने body को punishment दे रहा है. Even in obesity, combination of other therapies like Udvartana, Churnapinda Sveda, Basti and all, Virechana gives a wonderful result. You can definitely watch for it. So one of the most commonly done therapy in any Panchkarma center, in any Ayurvedic hospital, Virechana is one such wonderful therapy. So it is only your yukti, when to use and all. Like I said, in hypothyroidism, Vamana followed by Virechana is very good. In PCOD, Virechana followed by Basti, and then you can suggest for Pratimarsha, Nasya and all. That gives a wonderful result. Then before rejuvenation therapy, there is one more indication. See, any Rasayana Chikitsa or any wellness, suppose you are all healthy, a patient is very
good, but he wants to postpone all the diseases. He wants to take care of his body, more fitness चाहता है, जनरल डिटॉक्स भी वो कर सकता है. सो रसायन के अगर कोई पतला है, यू नो, नॉट जस्ट obese patient, those who are not that they are not overweight, even they want to put on weight, विरेचना followed by, मतलब मृदु देना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कितना अंडरवेट है पेशेंट. So then you can also choose Virechana and then give some Rasayana Dravyas. It will work wonderfully. Then sexual problems in males, yes, especially premature ejaculation है या erectile dysfunction है. See, ये सब vascularity की वजह से ही होता है, sexual disorders, because of the improper vascular supply to the main organ, जो organ है. तो वो अगेन वैस्कुलरिटी के जब टर्म आ जाता है, देन पित्ता एंड रक्त इज इन्वॉल्व्ड ओनली. सो very very much beneficial in premature ejaculation and erectile dysfunction. This is also very common in nowadays, especially IT sector and corporate sector में जो मेल्स काफी देर तक बैठ के सिस्टम के सामने काम करते हैं, एसी हॉल में बैठ के काम, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वर्कआउट प्रॉपर नहीं करते हैं, हेल्दी फूड नहीं लेते, उनको भी काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. उसमें भी विरेचना प्लीज वंडरफुल, यू नो, इट विल वंडरफुल रोल. एक बार विरेचना देके बाद में आप वाजीकरण द्रव्य देंगे, वाजीकरण मेडिसिन देंगे, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जब इंडिकेशन जानते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जानना भी बहुत बहुत जरूरी है. You should also know when to not give, where to not give the Panchkarma therapy, especially this Vamana, because see, this is also flushing out lot of toxins, but even the water content will be lost from your body. Okay, so you cannot say like कुछ लोगों को 20-25 times भी हो जाता है. You should be very sure that the patient will not have dehydration. वो डिहाइड्रेट ना हो, ये देखना आपको बहुत जरूरी है. तो इसलिए क्या बोलते हैं, दुर्बल को, और जो वेरी वीक है, who is very दुर्बला, so that such people should not be chosen for Virechana. So it is very important to choose the patients also. Then pregnancy, old age and children. So हाँ, या इंडिकेशन में एक पॉइंट आप ऐड कर लो, एज ग्रुप मैंने मिस कर दिया बताना. जो इंडिकेशन में जो कर सकते हैं, between 16 to 16 years of age to 16 to 60, इसके बीच में कोई भी आता है पेशेंट, आप कर सकते हैं. सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट है, जो बिलो 16 इयर्स के है, षोडश प्राय के नीचे है, वो बालक कंसीडर किया जाएगा. when we say children in Ayurveda, it is always below 16 years. Old age मतलब above 60 years. So you have to be very careful in these age group. So इसके साथ साथ जो गर्भिणी तो बताया, इवन नवप्रसूता बोलते हैं आयुर्वेदा में, who is recently delivered, no, even for them you should not give Virechana. So add that point, navaprasuta. And along with this, जो वेरी थिन है और वेरी फैट है, मतलब आमावस्था को देखना पड़ेगा. वेरी थिन तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वेट लॉस, वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वेट लॉस भी रहेगा विरेचना में. सो काफी वेरी वेरी अंडरवेट है, वेरी वीक बिल्ट है, तो आप मत कीजिएगा. एंड वेरी फैट पीपल यू हैव टू टैकल इन डिफरेंट वे, एंड देन ओनली यू कैन गिव विरेचना. ओके, देन सीवियर वीकनेस, कुछ हेल्थ इश्यूज है, बहुत वीकनेस ऑलरेडी उस कंडीशन के वजह से है, ऑलरेडी लूज मोशन वगैरह हुआ है, या अधोगर रक्तपित्ता है. सी, पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग ब्लीडिंग फ्रॉम द लोअर, लाइक पाइल्स में, या एनोरेक्टल कंडीशन में, या इंटेस्टाइन से, या कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से. अगर थ्रू एनल कैनाल से अगर रक्तपित्ता ब्लीडिंग हो रहा है, you should not give in such patients. You have to treat that first. अधोगर रक्तपित्ता को ट्रीट करो, फिर बाद में अगर बहुत ही जरूरी है, उनको चाहिए, then only you have to go for Virechana. So अधोगर रक्तपित्ता also you can add one contraindication. Then अल्प अग्नि. चलो बिठाओ बच्चे को. So अल्प अग्नि is also one more
इंडिकेशन, बिकॉज अग्नि अगर मंदा है तो विरेचना द्रव्य वो डाइजेस्ट होके वो प्रॉपर, मतलब स्नेह कर्म ही प्रॉपर नहीं होगा। जो हम स्नेहपान देंगे ना पूर्व कर्म ऑफ विरेचना, सो वो तो प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। सो इसलिए अल्प अग्नि में बिल्कुल मत कीजिएगा। यू शुड ऑलवेज डू प्रॉपर दीपन पाचना, देन ओनली यू कैन डू virechana. Then another contraindication is madatyaya, means the one who is drunk alcohol. It is very important. कुछ भी पंचकर्मा हो, चाहे वमना हो, विरेचना हो, बस्ती हो, कुछ भी हो, ask the patient not to take any alcoholic drinks. No, बहुत लोगों को वो हैबिट रहता है, so weekend पार्टी भी करते हैं। जो आप रिस्ट्रिक्शन में बोलेंगे तो वमन विरेचना वगैरह पंचकर्मा में you should ask the patient not to smoke the cigarette, also not to take any alcoholic drinks. Then it is virechana is contraindicated in navajwara and navapratishyaya, because amavastha mein rehta hai. You should never give virechana in these amavastha condition, kuch bhi ho nahi de sakte hai. You should always give proper deepana pachana and then only you can go for virechana. Okay. Then हाँ, सामावस्था में मैंने बता दिया ऑलरेडी, नहीं दे सकते हैं। कुछ भी कंडीशन हो, अब आमावस्था में नहीं दे सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नवज्वरा मैंने बोला अक्यूट फीवर में नहीं देना है। डायरिया एंड डिसेंट्री डेफिनेटली नहीं दे सकते, बिकॉज ऑलरेडी पर्सन इज डिहाइड्रेटेड, यू कैन नॉट, उसका अग्नि भी ठीक नहीं रहेगा एंड वो नहीं सह पाएगा, he will not be able to tolerate. हार्ट कंडीशन में नहीं, अगेन यस, बिकॉज बहुत सारे बार परगेशन होता रहता है, तो अगेन हिज ब्लड प्रेशर में वेरी ऑल्सो, सो अवॉइड। पोस्टनेटल पीरियड मैंने बोला नवप्रसूता ऑलरेडी। अल्सरेशन इन एनस, मतलब कुछ भी एनोरेक्टल कंडीशन है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट एंड देन दिस वन। अनडायग्नोस्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग, रक्त पित्त इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो नहीं कर सकते हैं। देन सिस्टोसिल एंड प्रोलैप्स्ड यूट्रस डेफिनेटली, बिकॉज इट विल वर्सन द कंडीशन। ऑलरेडी वो अधोगा कंडीशन में वो ऑलरेडी प्रोलैप्स है, आप ज्यादा प्रेशर देंगे एनस से, काफी बार आपका मोशन जाता रहेगा, द यूट्राइन प्रोलैप्स विल वर्सन, इट माइट अग्रीवेट। देन सिमिलरली सिस्टोसिल ऑल्सो, सो यू शुड टेक केयर इन द ब्लैडर में। अगर यूट्रस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, you have to take care of such things also before going for virechana. Yeah, next slide please. So अब तक जो मैंने बताया है इंट्रोडक्शन एंड इंडिकेशन, आप लोगों को समझ में आया ना? You all understood. See, indication is very vast. Ayurveda is very vast. You have to see the prakriti, even Rutu Shodhana, even काफी सारे चीजें आपको you have to keep in mind. जो भी हम बता रहे हैं, it's basic. Once you start practicing, no, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा इस अवस्था में दे सकते हैं या इस कंडीशन में दे सकते कि नहीं है। Okay, yeah. So now coming to the virechana benefits. See, virechana, एक बार विरेचना हो जाए, दिस इज अ वंडरफुल डिटॉक्स प्रोसीजर, मैंने ऑलरेडी बताया है। सो एक बार वो गट क्लेंस हुआ है ना, सो देन डेफिनेटली द डाइजेशन इंप्रूव्स. once the digestion improves, the agni will become better, so even the appetite increases, whatever the absorption, even the intestinal वहां पे भी अब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा. सी अग्नि इन ऑल लेवल, नॉट जस्ट द जाठराग्नि, कोष्ठा में भी अग्नि है, धात्वाग्नि है, सब लेवल के अगर प्रॉपर विरेचना हुआ है ना, एकदम आपने वेरी एफिशिएंटली यू हैव डन द विरेचना, अग्नि नॉट जस्ट इन द लेवल ऑफ स्टमक और जाठराग्नि, इट इन द लेवल ऑफ धात्वाग्नि एंड भूताग्नि ऑल्सो, इट विल बी क्लेंस्ड, इट विल बी इम्प्रूव्ड. So once that is set right, then all the things will, all the issues will be taken care.
डेफिनेटली appetite इंक्रीज होता है, पेशेंट्स विल टेक प्रॉपर मील एंड जो भी दवाई लेंगे प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होगा, द abdomen bloating will be reduce, the heaviness, जो बॉडी एकदम it will become very light. Then not just the physical effect, Virechana also has the mental effect. According to Ayurveda, both mind and body are interdependent, interrelated. So एक बार विरेचना हो जाए, इवन द माइंड, जो भी उनको एंजाइटी है, जो भी उनको डिप्रेशन है, इवन गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड, यू कैन ऑल्सो यूज इन इंडिकेशन, यू कैन ऑल्सो नोट वन मोर पॉइंट, इन मानसिक रोगास ऑल्सो इट इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि डिप्रेशन में एंजाइटी आजकल तो इवन सॉरी टू गो बैक टू द प्रीवियस टॉपिक, नाउ जस्ट I just wanted to inform you, आजकल के जमाने में equally people are mentally stressed, not just physically stressed because of the life